Hello students, in today's lecture of the unit costing we are doing some special illustration. Let's start with the illustration number 17. Costing department of the Ashish Limited give the following information and prepare a cost sheet. Material cost will be 40% of work cost, wages will be 40% of prime cost, work overhead will be 25% on sales price, office overhead are unknown, then unsold stock of the finished goods was 25% of the wages. Selling and distribution overhead will be 150% of the profit. Profit will be 10% on the selling price, and work overhead amounted rupees 20,000. As you can see, the none of information is properly given. So each and every term including material cost, work cost, wages, office overhead, work overhead, selling and distribution, everything we have to find out. Only works overhead is given 20,000. Remaining the rest of the things we have to find out. वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके रिलेटेड हम एक इक्वेशन बनाएंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज मटीरियल कोस्ट will be 40% of works cost. Material cost will be 40% of the work cost. अब हम अज्यूम करते हैं मटीरियल को x और वेजेस को y. राइट, हम अज्यूम करेंगे मटीरियल को x और वेजेस को y. वर्क कोस्ट कैसे फाइंड करते हैं? वर्क कोस्ट हम प्राइम कोस्ट में अगर ऑफिस ओवरहेड ऐड करें, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो हमें वर्क कोस्ट मिलता है. राइट, सो वर्क कोस्ट कैसे मिलता है? वर्क कोस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कोस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड. और प्राइम कोस्ट कैसे मिलता है? मटीरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो मटीरियल प्लस वेजेस प्लस वर्क्स ओवरहेड, दिस इज द वर्क कोस्ट. राइट, मटीरियल को हमने अज्यूम किया है x, वेजेस को हमने अज्यूम किया है y, और वर्क्स ओवरहेड दिया गया है विच इज 20,000. सो वर्क कोस्ट की फॉर्मेट क्या मिली? वर्क कोस्ट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 20,000, ये मिला. और इसके हिसाब से क्या है? मटीरियल विल बी 40% ऑफ द वर्क कोस्ट. सो मटीरियल इज इक्वल्स टू 40% ऑफ वर्क कोस्ट. मटीरियल ने हमने अज्यूम किया है x, 40% ऑफ वर्क कोस्ट. वर्क कोस्ट क्या है? वर्क कोस्ट है x प्लस वाई प्लस 20,000. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज 2 एंड दैट इट विल बिकम 5. 5 come this side, that means 5x is equals to 2x plus y plus 20,000. Let's multiply the whole equation with the 2, that is 2x plus 2y plus 20,000. 2x come this side, it will become 5x minus 2x, that means 3x plus 2y, it will come this side, minus 2y minus 20,000 is equals to 0. We can write like this, 3x minus 2y is equals to 40,000. 2 2s are 4, 40,000. This is our first equation, that is 3x minus 2y is equals to 40,000. So from the first statement, the material cost will be 40% of the work cost. उससे हमें ये equation मिला, that is 3x minus 2y is equals to 40,000. Now let's about the second statement. Second statement is wages
will be 40% of prime cost. अब हमने पहले ही देखा प्राइम कोस्ट क्या होता है. प्राइम कोस्ट मीन्स मटीरियल प्लस वेजेस, राइट. सो प्राइम कोस्ट is equals to material plus wages. That means x plus y. Then wages will be, that means wages stands for y, will be 40% of prime cost. That means y is equals to 40% of prime cost. Prime cost stands for x plus y. Again, let's solve this equation. 5y is equals to 2x plus 2y. It will come this side. 5x minus 2y minus 2x is equals to 0. Then, sorry, 5y. 3y minus 2x is equals to 0. Or we can write like 2x minus 3y is equals to 0. From this second statement, we find out the second equation. That is first equation, 3x minus 2y is equals to 40,000, and this is 2x minus 3y is equals to 0. Let's solve the both of equation and find out the x and y, that is material and wages. First equation is 3x minus 2y is equals to 40,000, and second equation is 2x minus 3y is equals to 0. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए दोनों को एक कॉमन एलिमेंट्स करना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 80,000. Then 6x minus 9y is equals to 0. Minus plus minus. Cut. 5y is equals to 80,000. Y is equals to 80,000 divided by 5, that is 16,000. So y stands for wages. wages 16,000 मिला और x मिलेगा 3x minus 2y, सॉरी 2x minus 3y is equals to 0. यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 16,000. 16,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 24,000. सो x आएगा 24,000. सो हमें मटीरियल मिला 24,000, वेजेस मिला 16,000, राइट. और वेजेस और मटीरियल को मिलाएंगे तो 40,000 आएगा. दैट व्हाट इज दिस? दिस इज द प्राइम कोस्ट, राइट. और प्राइम कोस्ट में वर्क ओवरहेड 20,000 ऐड करेंगे तो 60,000 क्या मिलेगा? वर्क ओवरहेड, सॉरी वर्क कोस्ट. वर्क कोस्ट कितना मिला? 60,000. अंडरस्टूड? लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज वर्क्स ओवरहेड विल बी 25% of sales price. So work overhead is already given 20,000. वो सेलिंग प्राइस का 25% है, राइट. सो विच मीन्स दिस इज द 25% ऑफ सेलिंग प्राइस. सो व्हाट अबाउट 100%? दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस 100 है और 25% वर्क ओवरहेड है. सो 25% इज 20,000. सो व्हाट अबाउट द 100? The 20,000 multiplied by 100 divided by 25%, that will come 80,000. So selling price, that means sales will come 80,000.
Understood? So again, important term we have received. Then let's talk about the next term. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफिस ओवरहेड आर नॉट नोन, यानी कि ऑफिस ओवरहेड के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. देन फिफ्थ पॉइंट, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज 25% ऑफ द वेजेस. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25% ऑफ वेजेस. वेजेस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज 16,000. 16,000 का 25% है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दैट मीन्स 16,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 4,000. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. Right? Now let's talk about the point number 6. Selling and distribution overhead will be 150% of the profit. So selling and distribution overhead 150% of profit है. So पहले तो हमें profit find करना पड़ेगा, then we have to find out the selling and distribution overhead. So profit का point क्या है वो देखना पड़ेगा. That is 7th point. Profit will be 10% of the selling price. So पहले 6 solve नहीं हो सकता, इसलिए हम 7 solve करेंगे. क्या है, प्रॉफिट विल बी 10% ऑफ द सेल्स प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमने अभी ही फाइंड की, दैट इज 80,000. 80,000 के 10% यानी कि 8,000. सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8,000. अब पॉइंट नंबर 6 हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सेलिंग ओवरहेड विल बी 150% ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट का 150%, दैट इज 8,000 मल्टीप्लाई बाय 150%, दैट विल कम 12,000. राइट, दिस इज द सेलिंग ओवरहेड. And last is overhead amount at 20,000 rupees, works overhead. So it is already given. We have solved most of the terms and the statement. On the basis of this, we have to make the cost sheet, and एक statement दिया गया है, that is office overhead are not known. So वो भी हमें find करना पड़ेगा, right? So let's prepare a cost sheet. cost sheet हम start करेंगे first raw material से. रॉ मटेरियल हमने फाइंड किया है, दैट इज 24,000. देन वेजेस हमने फाइंड किया है 16,000. टोटल वी गेट 40,000 एज अ प्राइम कॉस्ट. देन वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड, दैट इज 20,000. 60,000 we got work cost. Then office overhead. ऑफिस ओवरहेड के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता है, राइट? सो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, टोटल तो होगा नहीं. लास्ट में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, which is 12,000. Sorry, before that we have to deduct the closing stock, that is 4,000, right? Then here we will get cost of sales. हमारे पास प्रॉफिट भी है, that is 8,000, एंड सेल्स भी है. सेल्स कितना है, 80,000. सो अब हम दिस अमाउंट इज नहीं है, वो हमारे पास मिसिंग है ये अमाउंट, तो हम रिवर्स जाएंगे. सो 80,000 माइनस 8,000 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, राइट? दैट मीन्स 72,000. अब हम ये कॉस्ट फाइंड करनी है, दैट इज बिफोर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें फाइंड करनी है. और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो है ही। सो 72,000 प्लस 12,000, तो हम रिवर्स जा रहे हैं, तो जो प्लस करना है वो माइनस करेंगे और माइनस करना है वो प्लस करेंगे। सो 72,000 माइनस 12,000 प्लस 4,000, दैट इज 64,000। यहाँ पे टोटल कितना आएगा 64,000। यहाँ पे 60,000 वर्क कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64,000 है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा, ऑब्वियसली इट विल कम 4,000। सो ऑफिस ओवरहेड के बारे में हमें जो नहीं पता था वो हमने फाइंड कर लिया, विच इज 4,000। राइट, दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम स्पेशल इलस्ट्रेशन नंबर 17। आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है और इसके हिसाब से इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। अंडरस्टूड?